Hello guys, this is me Asit Kumar Yadav. Now today we will start chapter number 4, that is reproductive health, and 1, 2 and 3 chapter of the NCERT chapter number 2 class 12th standard has already completed. And if you have not seen my videos, I will provide you the link in the description box where you can get my videos, and you may watch my videos, and you may have to clear your doubts. And if you have any query, then feel free to ask me in the comment sections. Now let's start today's chapter, that is reproductive health. And sorry for the delay of the 3 days because I was shifting my room, so that I was not able to make these videos. And let's start today's videos. Hello guys, today we will start chapter number 4, that is reproductive health, and what we have to learn in this lesson. Now let's see. First is reproductive health problems and strategies, and then population explosion and birth control, medical termination of pregnancy, sexual transmitted disease, and in last infertility. Now this is chapter number 4, and now first we have to discuss chapter number 4 NCERT line by line reading analysis. Then we will discuss the notes of this chapter. Then we will move to the exercises, and diagrams are being covered in this NCERT discussions because this is the book discussions, and in this book there is diagrams are also given which we should describe in our way. Now let's start today's videos. You have learned about human reproductive system and its function in chapter 3. हम लोगों ने चैप्टर 3 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम लोग चैप्टर 4 बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और ये उसी टॉपिक का एक क्लोज बहुत मतलब नज़दीकी टॉपिक है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? इस टर्म के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. ये टर्म किसको कहा जाता है? हेल्दी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. और ये क्या है? इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स जो होता है सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन का, उसको भी ये इंक्लूड करता है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग WHO कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के चारों मतलब ऑल एक्सपेक्ट्स में वो सक्षम हो, यानी कि स्वस्थ हो. दैट इज़ जो कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल है. जो कि फिजिकल तरह से भी मतलब शारीरिक रूप से भी हो, इमोशनल यानी कि भावनात्मक रूप से भी हो, बिहेवियरल रूप से भी हो, और सोशल यानी सामाजिक रूप से भी. अगर मनुष्य स्वस्थ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called as reproductive healthy. देखिए इसमें सोसाइटी जो कहा गया है कि जो सोसाइटी पीपुल जो इसमें मतलब समाज में आदमी क्या हो, फिजिकली, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, नॉर्मल हो, और इंट्रैक्शन एमंग ऑल सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट और नॉर्मल हो, एंड इमोशनल एंड बिहेवियरल जो कि इमोशनल भावनात्मक, और बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक रूप से इंट्रैक्शन जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, वो ऑल सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट माइट बी, जो कि हर चीज़ में क्या हो, सक्षम हो, उस प्रक्रिया को, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी. Why is it significant to maintain reproductive health, and what are the methods taken to achieve it? Let us examine them. ये क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, और ये क्यों मतलब कैसे मतलब इसको हम लोग बरकरार रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. पहला टॉपिक आता है हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. रिप्रोडक्टिव का हेल्थ और क्या प्रॉब्लम होते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं. इंडिया वॉज अमोंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज in the world to initiate action plan and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal.
देखिए भारत एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे पहला कंट्री है जो कि एक क्या किया है, एक्शन प्लान इनिशिएट किया है जो कि नेशनल लेवल पे चलाया गया था, जिससे कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको कि हम लोग सोशल गोल की तरह, सामाजिक गोल मतलब क्या कहते हैं, हाँ सामाजिक मतलब निश्चितता अपना सके। दिस प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग प्लान बोला जाता है, जो कि सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, इंडिया में। वेयर इनिशिएटेड इन 1951, जो कि कब शुरू किया गया था, 1951 में। एंड वेयर पीरियडिकली एसेट ओवर द पास्ट डिकेड, जो कि हर एक मतलब पास्ट डिकेड में ये पास्ट डिकेड यानी कि 10 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको मतलब पूरा अच्छे तरह से कानून में लाया गया था। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child care, जो कि होता है कि जो रिप्रोडक्शन का कोई एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम होता है जो कि मतलब चेंज किया जाता है किसी चीज़ में, किसी एक्सपेक्ट में, वो हम लोग कब देखते हैं, उसको कहाँ पे देखा जा रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, जो कि किसको कहा जाता है, RCH, जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैमिलीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया है, क्रिएटिंग अवेयरनेस यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाई गई है अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट, जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट होते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाई गई है, और इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बना सके। यही इसके मेजर टास्क, इस प्रोग्राम के मेजर टास्क हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड विजुअल and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। देखिए इसके द्वारा गवर्नमेंट यानी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी संस्थानों द्वारा ये वेरियस स्टेप टेकन किया गया, यानी कि वेरियस बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते अपनाए गए हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल, जैसे कि होता है हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में ऐड आता है यानी एडवर्टाइजमेंट होता है, उस चीज़ के बारे में दिया गया है। और ये पेपर सब में जो आता है, न्यूज़पेपर सब में जो आता है, उसको हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं, जो कि गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी द्वारा चलाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पेरेंट्स यानी कि हमारे माता पिता, अदर क्लोज रिलेटिव मतलब और मतलब क्लोज मतलब नज़दीकी रिश्तेदार, टीचर्स और एंड फ्रेंड्स मतलब शिक्षक और सहपाठीगण, also have a major role in the disseminations of the above information। इनका भी एक बहुत अच्छा मतलब अहम रोल अदा करते हैं किस चीज़ में, जो डिसमिनेशन होता है यानी इस चीज़ को बढ़ावा देने में, जो कि ऊपर में हम लोग डिस्कस किए रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो भी इनकरेज्ड, और जो सेक्स एजुकेशन होता है वो स्कूल में उसको भी इनकरेज किया जाए यानी बढ़ाया जाए। टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग, जो कि युवा लोग को सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम हैविंग एन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, जो कि इससे क्या होगा, जो कि हम लोग का युवा जो रहते हैं उनको जो मिथ यानी कि मिथ क्या कहा जाता है, भाव या झूठा मतलब जो होता है, उससे मतलब वो लोग सेक्सुअल रिलेटेड एक्सपेक्ट से मतलब सब अच्छी तरह से जान ले, जो क्या होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाने बताया जाए उनके बारे में, यानी स्कूल में भी बताया जाए। एडोलसेंट एंड रिलेटेड चेंज यानी कि एडोलसेंट यानी कि युवा अवस्था होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलते हैं, उसको एडोलसेंस बोला जाता है, और उसको में क्या क्या चेंजेज आते हैं उसके बारे में बताया जाए। सेफ़ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यानी कि सेफ़ यानी कि कौन सा किस प्रकार के हम लोग कॉपुलेशन करें, यानी कि क्वाइटस जो होता है उसमें सेफ़ रहता है और कौन सा हाइजेनिक रहता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है जिसको हम लोग STD बोलते हैं, उसके बारे में बताया जाए।
एड्स यानी कि एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी एड्स के बारे में। इसको क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एटसेट्रा, जिसके कारण क्या होगा? विथ हेल्पफुल, जो कि आदमी को बताया जाए, हेल्प किया जाए, स्पेशली, जो कि स्पेशली किसको? दोज इन द एडोलसेंट एज ग्रुप, जो कि अभी युवा अवस्था में, एडोलसेंट यानी युवा अवस्था में है, टू लीड ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ, जो कि जिससे कि वो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ जी सके। एजुकेटिंग पीपुल यानी कि पीपुल को, मतलब क्या, आदमी लोग को, मतलब मनुष्य को क्या किया जाए? एजुकेटिंग यानी एजुकेट किया जाए, यानी शिक्षा दिया जाए। स्पेशली फर्टाइल कपल्स, जो कि फर्टाइल कपल्स कहा जाता है, यानी कि जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप में है, यानी कि जो कि शादी करने के क्या कहते हैं, शादी करने के एज ग्रुप में आते हैं। जैसे कि हो गया, जैसे कि हम लोग का भारत सरकार द्वारा नियोजित किया गया है, जो लड़की लोग होती है, यानी लड़कियों को 18 साल में जो शादी किया जाता है और लड़के लोग को 21 साल में, उस एज ग्रुप को, इस एज ग्रुप के मनुष्य को, मतलब आदमी को बताया जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और सेक्सुअल रिलेटेड एक्सपर्ट के बारे में बताया जाए। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, जो कि क्या क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होते हैं उसके बारे में बताया जाए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, जो कि गर्भवती माँ होती है, उसका कैसे केयर किया जाए उसके बारे में बताया जाए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, जो कि आफ्टर द, मतलब क्या कहते हैं, जो कि बेबी के बॉर्न होने के बाद जो पोस्ट नेटल होता है, यानी कि उसके बाद मदर यानी कि माँ और बच्चे का कैसे केयर किया जाए उसके बारे में बताया जाए। इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि लैक्टेशन हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 3 में, जो ब्रेस्ट फीडिंग को लैक्टेशन कहा जाता है, तो वही इंपॉर्टेंस, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग से, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है? बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है? माँ के दूध से, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है, जिससे कि बच्चा में रेसिस्टेंस होता है, जिससे कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है। ठीक। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड, यानी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चे में कि ये बेटी है कि ये बेटा है, क्योंकि दोनों तो समान ही है ना, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो हमारे समाज में क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर खुशी कब मनाते हैं? जब बेटा होता है। बेटी होने पर उतना लोग खुश नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। Would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size, जैसे कि बताया जाए कि एड्रेस इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप, जो कि इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण थी सोशल, सामाजिक कंसिक्वेंस, यानी कि सामाजिक दौरे में कैसे रहा जाए हेल्दी फैमिली के साथ, और डिज़ायर्ड साइज, यानी कि जितना छोटा फैमिली रहेगा उतना खुशी से परिवार रहता है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है, हमारे दो फैमिली प्लानिंग किया गया है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। Awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and related crimes, etc., need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अवेयरनेस किया गया, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसका अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी सेक्सुअल इविल्स या सेक्स एब्यूज़ जो होता है, यानी कि सेक्स एब्यूज़ क्राइम होता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जैसे कि रेप हो गया और भी कुछ होता है, छेड़खानी होता है, वो सब नहीं किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। इसको क्या किया जाए? क्रिएट किया जाए, क्या? इनेबल पीपल टू थिंक, यानी कि पीपल को सोचने के लिए इस पर मजबूर किया जाए, एंड इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लिया जाए जो कि इससे बचाया जा सके, जिससे कि सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी बनाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल हम आगे चले गए एक लाइन छोड़ करके, चलिए देखते हैं। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। जो कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है वेरियस एक्शन, मतलब कि बहुत सारे एक्शन प्लान होते हैं जिसके कारण क्या हम लोग अचीव कर सकें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स, जो कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, जो कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टिसाइज, जो कि इसको प्रोफेशनल एक्सपर्टिसाइज चाहिए, और मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए इस चीज़ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। These are essential to provide medical assistance to care
to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraceptions, menstrual problems, infertility, etc. ठीक, देखिए यहाँ ये क्या कहा गया है कि वो इसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिससे कि मेडिकल असिस्टेंस यानी कि जो होता है चिकित्सा असिस्टेंट मतलब प्रोवाइड किया जाए, और मनुष्य का मतलब जो केयर टू पीपल यानी कि आदमी का केयर किया जाए किसमें, इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें मनुष्य का केयर किया जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी जो कि गर्भावस्था, डिलीवरी यानी कि पार्चुलेशन जिसको कहते हैं हम लोग, डिलीवरी कहा जाता है, STD जिसको कि हम लोग पढ़े अभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है, एबॉर्शन क्या होता है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक। और ये कंट्रासेप्शंस यानी कि जो कंट्रासेप्शंस किया जाता है उसके बारे में बताया जाए, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, और ये जो फीमेल पेरेंट्स यानी कि फीमेल मेंबर्स में होता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में भी जागरूकता फैलाया जाए यानी कि उसको बताया जाए और इसको हेल्प किया जाए, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको मजाक ना उड़ाया जाए, उसका हेल्प किया जाए अच्छी तरह से मेडिकल असिस्टेंस के द्वारा। और इनफर्टिलिटी यानी कि जिसको हम लोग बांझ कहा जाता है भारतीय समाज में, जो कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, जो फर्टाइल फीमेल या फर्टाइल मेल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कैपेसिटी यानी कि दैट हैज़ नो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इज कॉल्ड एज द infertility. Let's start. Next, what is this? There is implementation of better techniques and new strategies from time to time, and also required to provide more efficient care and assistance to people. क्या कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंस यानी कि जो भी इसमें होता है, इसमें क्या किया जाए, इम्पोर्टेंस इम्प्लीमेंटेशन क्या करें, बेटर टेक्निक यानी कि जो भी नया नया आधुनिक तकनीक आ रहा है उसको हम लोग अपनाया जाए, एंड न्यू स्ट्रेटेजी, और न्यू स्ट्रेटेजी यानी नया नीति अपनाया जाए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यानी कि समय समय पर क्या किया जाए, नया तकनीक को अपनाया जाए, रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशियंट केयर, जिसके कारण क्या होता है, जो इफिशियंट केयर होता है ज़्यादा उसको अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जाए, और असिस्टेंस टू पीपल यानी कि पीपल का एफर्ट को भी उसमें लगाया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्टेटरी बैन और एमिनोसिंथेसिस। स्टेटरी होता है ना कि जो एमिनोसिंथेसिस पे बैन हो गया है, जो क्या होता है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस टू लेगेसी चेकिंग इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, और जो क्या होता है उसमें इम्यूनोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि फॉर द सेक्स यानी कि सेक्स पहले ही डिटरमाइंड हो जाता है, यानी कि पहले ही पता चल जाता है कि माँ का जो गर्भ में जो बेबी पल रहा है वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, यानी फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, ये पहले ही पता चल जाता था, जिसके कारण क्या होता था, फीमेल फर्टिसाइड हो जाता था, फीमेल फर्टिसाइड किया जाता था, इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, जिसके कारण क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, जो कि बच्चे को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था, उसको हम लोग फीमेल फर्टिसाइड कहते हैं, और यही होता था, यानी कि जैसे ही मतलब एमिनोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर आगे, और उस एमिनोसिंथेसिस में क्या होता था कि उसमें माँ के गर्भ में ही पता चल जाता था कि बच्चा जो है होने वाला है, यानी कि फ्यूचर बेबी जो होने वाला है उसको क्या है, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अगर मेल चाइल्ड रहता था तो ठीक है, अगर फीमेल चाइल्ड रहती थी तो उसको क्या किया जाता था, माँ के गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, जो कि जिसको हम लोग फीमेल फर्टिसाइड कहते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए एमिनोसिंथेसिस को बैन कर दिया गया है, ठीक। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जो कि ज़्यादातर चाइल्ड को क्या किया जाता था, इम्यूनाइज कर दिया जाता था, एटसेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, जो कि इस कनेक्शन में मेरिट में दिए गए हैं। इसके बारे में देखते हैं, एमिनोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolved substance. एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता था, जो कि होता है ना, एमिनोटिक फ्लूइड होता है जो डेवलपिंग फीटस का, उसको टेकन किया लिया जाता था बाहर, और एनालाइज द फीटल सेल, और फीटल सेल को एनालाइज किया जाता था, और एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, और उसमें भी जो भी डिजॉल्व सब्सटेंस रहते हैं उसको एनालाइज किया जाता था, ठीक। दिस प्रोसीड्योर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि इसी के कारण क्या पता चलता था, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं बेबी सब में उसको पहले ही पता कर लिया जाता था, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया,
डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, क्योंकि फिटस जो होता है वो कितना सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इसके डिटरमाइन यानी इसको पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता था। और इस सब टेस्ट के बारे में हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, और यही सब हम लोग अभी आगे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक, जेनेटिक्स में सब कुछ दिया गया है डिटेल में। चलिए अभी देखते हैं। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or improve upon the existing ones। देखिए, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में क्या किया गया है, रिसर्च किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो कि इनकरेज किया जाए यानी बढ़ावा दिया जाए किसको, जो गवर्नमेंटल यानी सरकारी और गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी होती है यानी संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए, जिसके कारण क्या हो, न्यू मेथड्स यानी कि नए तरकीब या नए तरकीब अपनाए जाए, या फिर जो पहले से लागू है उनमें इम्प्रूव किया जाए, पहले से लागू है जो पहले से जो तरीका है उसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, देखिए ये जो सहेली नाम का एक न्यू ब्रांड ऑफ कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स है, यानी सहेली नाम का एक न्यू कंट्रासेप्टिव है जो कि बस फीमेल के लिए है। ये कहाँ डेवलप हुआ था, वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया में ही इसको डेवलप किया गया है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। जो ये सहेली नामक है किसका, ओरल है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, जो कि किसके लिए है, फॉर द फीमेल के लिए है। ये कहाँ डेवलप किया गया था, बाय द साइंटिस्ट एट CDRI, यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पे है, लखनऊ में, और इंडिया, लखनऊ जो कि कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal cares leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex related problems etc. all indicate improved reproductive health of the society। जो कि बेटर अवेयरनेस यानी कि सही तरह से जागरूकता फैलाया जाए, जैसे कि अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, जो कि क्या कहते हैं, सेक्स रिलेटेड यौन संबंधित मैटर्स होते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड, जो कि नंबर क्या किया जाए, मेडिकली असिस्टेड का नंबर क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। डिलीवरीज जो होता है इसका बेटर पोस्टनेटल केयर किया जाए, जो कि आफ्टर द डिलीवरी जो होता है, जो पोस्टनेटल केयर बताए ना, जैसे कि पार्चुरेशन हो जाता है ना, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद जो मदर और चाइल्ड का केयर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पोस्टनेटल केयर कहा जाता है। इसको क्या होता है, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि बहुत सारे केस में क्या होता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का मौत हो जाता है, माँ का मौत हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि आफ्टर गिविंग द बर्थ द मदर गोट डाइड, दैट इज कॉल्ड द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड आफ्टर द बर्थ इफ द बेबी गोट डाइड देन इट इज़ कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको रिड्यूस किया जाए, जैसे कि होता है ना, तो बहुत सारे केस में बताए अभी, जो माँ मर जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर आफ्टर बच्चे के जैसे पैदा होने के बाद अगर बेबी ही मतलब डेड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको क्या, इस नंबर को क्या किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, जैसे कि होता है ना, हम लोग फैमिली प्लानिंग किए गए हैं, तो इसमें क्या किया जाए कि स्मॉल फैमिली को ही बनाया जाए, स्मॉल फैमिली ही सुखी परिवार होता है, ऐसा भारत सरकार मानती है, जिसकी पॉपुलेशन साइज पर भी कंट्रोल किया जा सके। बेटर सेक्स डिटेक्शंस, जो कि सेक्स डिटेक्शन होता है, बेटर डिटेक्शंस, बेटर डिटेक्शन यानी कि अच्छे तरह से उसको देख रेख किया जाए। एंड क्योर ऑफ STDs, और जो STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है उसको क्योर किया जाए, यानी उसका इलाज कराया जाए। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, और सबसे ज़्यादा क्या किया जाए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जितने भी मतलब यौन संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, उसको लिए मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। ऑल इंक्लूड इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, और इस सब क्या इंक्लूड कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि सोसाइटी का जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, और कल से हम लोग डिस्कस करेंगे 4.2 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल, लेट्स सी यू टुमारो एट द टाइम 7 PM, बिफोर द 7 PM ऑफ द इवनिंग।